Hi, good morning, my dear student. So, today I'm going to take your third class of economics. So, we have discussed in our last class that what is economics, then types of economics like the microeconomics, macroeconomics, how microeconomics impact macro and vice versa. Then we have discussed some aggregates like GDP, GNP, NNP. We have discussed all these things. So most of my students are demanding कि सर विल यू प्लीज बाईलैंग्वेज आप प्लीज पढ़ाएं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके. सो टुडे आई ट्राई कि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाऊं बाईलैंग्वेज, जिससे क्या हो कि हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट जो हैं पैरेलली इस लेक्चर से जो है लाइक हेल्प ले सके. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय सेशन इन बाईलैंग्वेज. ओके, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैं पढ़ाऊंगा, तो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. सो माय यूट्यूब चैनल इज त्रिपाठी सर यूपीएससी वाले. इफ till at you didn't subscribe my channel, so please subscribe my channel, that is Tripathi Sir UPSC wale. Here you will get a series of video lecture on economics and the whole history, means modern history and world history except ancient and medieval. Yeah, so you will get. So, and within this 5 months of span of time, because only 5 months are left for prelims 2023. So it's my best wishes that you all crack the UPSC prelims with my smart and innovative strategy. In last class, one of my videos there, you must see that video, because within that video I have discussed only you need to focus on 5 subjects like pol science, economics, history, art and culture, science tech and environment and ecology, because only 5 months are left, so you need to focus on that. Okay, and please with me till 5 months of this, and definitely you will crack the UPSC exam. Okay, and okay, let's start the session, third session of economics. So I have discussed the economics, what is economics, then microeconomics, then I have discussed macroeconomics, then I have discussed all the means like GDP, GNP, NNP, NDP, all these things I have discussed. So today I am going to discuss a very important topic, that is demand and supply. So demand and supply, it's a very common term. So जो डिमांड बोलते हैं या जो सप्लाई बोलते हैं, ये टर्म बहुत ही कॉमन है. इट्स वेरी कॉमन टर्म. एक बार आप जो है इस बोर्ड के चाहें तो इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू demand. What is demand? What is supply? What is law of demand? What is law of supply? And the other factors which affect the law of demand and the law of supply. So let's start the session. So first of all, we need to discuss what is demand and what is supply. So demand is what? Demand is a quantity of goods that a consumer is willing to buy at different prices. Of course. सो डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो एक कंज्यूमर, जैसे हम और आप क्या हैं, कंज्यूमर हैं. हम क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो हम जो है क्या है एट डिफरेंट प्राइसेस हम उस प्रोडक्ट का कंज्यूम करते हैं. तो डिमांड इज व्हाट? डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एट डिफरेंट प्राइसेस. ओके, देन हम आते हैं सप्लाई पे. सप्लाई क्या है? तो भाई
जो सप्लाई है, जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोडक्ट्स बनाता है, जो गुड्स बनाता है, तो सप्लाई इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ प्रोड्यूसर, जो बना रहा है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस, सो दैट इज सप्लाई। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर? सो डिमांड एंड सप्लाई आपको क्लियर हो गया। सो डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स, सामान मीन्स जो भी हम सामान जो है गुड्स यूज करते हैं हम अपने घरों में, क्योंकि हम और आप कंज्यूमर ही हैं, तो उसमें जो कंज्यूमर है, जो हम और आप हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स परचेज करते हैं, जो हमारी डिमांड को कैटर्स करता है, दैट इज डिमांड। सो डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एट डिफरेंट प्राइसेस। सप्लाई क्या है? भाई जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो गुड्स को बनाता है, सो सप्लाई इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। वो मार्केट में क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को क्या करता है? सेल करता है, देन वो मार्केट के थ्रू हमारे तक पहुंचता है। तो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ डिमांड? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड, भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या है? तो लॉ ऑफ डिमांड इज सिंपली इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एट इट्स ओन प्राइस एंड वाइस वर्सा। मतलब हम जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट गुड्स का, जो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट गुड्स का अपने प्राइस पे, हम चाहते हैं कि जो हम एक प्राइस जो हमें अच्छा लगता है कि हाँ ये एक फेयर प्राइस है, कि उस प्राइस पे मुझे वो गुड्स मिल जाए। अंडरस्टूड? तो जो लॉ ऑफ डिमांड है इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एट इट्स ओन प्राइस। सो देखिए ये ग्राफ है किसका? लॉ ऑफ डिमांड का। हमने जो है एक्स एक्सिस पे जो है कि क्वांटिटी बनाई है, एंड देन वाई एक्सिस पे हमने क्या बनाया है? डिमांड ऑफ प्राइस बनाया है। तो अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड को आपको समझाऊं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इट स्टेट्स दैट एज द ओन प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड इफेक्ट बाय द कंज्यूमर इंक्रीजेस कीपिंग अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड अनचेंज। कहने का मतलब यह है कि सिंपली अगर आप जो है जो गुड्स की प्राइस है, गुड्स की प्राइस अगर मार्केट में कम होता है, लेट अस सपोज गुड्स का जो है कि कोई ऐसा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपको ही पता है कि जब स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्ट या फिर कोई गुड्स लॉन्च होता है मार्केट में तो उसकी प्राइस थोड़ी कम होती है। ऐसा नहीं है कि वो क्वांटिटी बिग ब्रांड से अच्छा नहीं है अच्छा, लेकिन मार्केट में अभी नया है तो उसके प्राइसेस थोड़े कम रहते हैं। तो जब उस गुड्स, उस पर्टिकुलर गुड्स की जो प्राइस है वो कम हुई, तो एक कॉमन कंज्यूमर का नेचर क्या होता है? भाई हम और आप तो बहुत रिच नहीं है, तो हमारा और आपका नेचर क्या होगा कि भाई सेम गुड्स, सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स अगर कम दामों में आई तो हमारा जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, कि भाई हम चाहेंगे कि प्रोडक्ट्स को, गुड्स को खरीद लें। तो वही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इट स्टेट्स दैट एज द ओन प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस, अगर गुड्स की प्राइस क्या हो जाए? घट जाए, सो द क्वांटिटी डिमांडेड इफेक्ट बाय द कंज्यूमर इंक्रीजेस। तो जो कंज्यूमर जो क्वांटिटी डिमांड करता है, जो उसे चाहिए वो क्वांटिटी वो बढ़ा देता है कि भाई प्राइस कम हो गई है, 2-4 और एक्स्ट्रा लेके रख लो, ठीक है। कीपिंग अदर फैक्टर्स अनचेंज, जो दूसरे अदर फैक्टर्स हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, उसको साइड में कर देता है। बट सोचता है कि भाई अच्छा गुड्स है, इसका प्राइस अच्छा है, मीन्स क्वालिटी अच्छी है, तो हम जो है कि इसको और जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उतनी हम खरीद लें। सो दैट इज एक्चुअली द लॉ ऑफ डिमांड स्टेटमेंट्स। तो लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट्स यही कहता है, और यही, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगाओ ना यार। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हम गुड्स एंड सर्विसेज, हम डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को कंज्यूम करते हैं, हम कहीं अपनी सर्विस देते हैं,
एज अ टीचर हैं, एज अ सीए हैं, एज अ डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, तो हम जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज देते हैं। तो ओवरऑल जो गेम है ना, दैट इज गुड्स और सर्विसेज का ही है। हमें गुड्स एंड सर्विसेज के बदले पैसा मिलता है। हम गुड्स किसी से लेते हैं तो पैसा देते हैं, किसी को देते हैं तो उससे पैसा लेते हैं। हम किसी को सर्विस देते हैं तो उससे पैसा उससे लेते हैं, और देन किसी को देते हैं। तो ये वाइस वर्सा पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट्स, ओके। एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स है, हमारे डेली लाइफ का सब्जेक्ट्स है, तो बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। और आज से तो मैंने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर प्लीज़ बाइलिंगुअल आप स्टार्ट करो। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, उन्हें भी मीन्स समझने में आसानी होगी। सो फ्रॉम टुडे आई हैव स्टार्टेड। सो दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो मेनली लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, what it states that law of demand, it states that as the own price of goods decreases, the quantity demanded, अगर जो है जो भी गुड्स है उसकी प्राइस अगर डिक्रीज हो जाती है, तो जो कंज्यूमर हैं, जो हम और आप हैं, तो उस गुड्स की क्वांटिटी का डिमांड बढ़ जाता है। हम चाहते हैं कि और भी उस गुड्स को खरीद लें, ठीक है। दूसरे फैक्टर की जो है फर्क या फिर जो है परवाह नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई उसको और खरीद लें। सो दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड इट स्टेट्स दैट एज द ओन प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस, द क्वांटिटी डिमांडेड इफेक्ट बाय द कंज्यूमर इंक्रीजेस, कीपिंग अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड अनचेंज। ये आपका देखिए डिमांड ऑफ प्राइस, डिमांड ऑफ प्राइस, डिमांड ऑफ प्राइस एंड देन क्वांटिटी के बीच में ये ग्राफ है। ये लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्रेस कर रहा है। तो अब देखिए यहां पे देखिए, जैसे जैसे ये जो है क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, क्या हो रही है? क्वांटिटी। अब यहां पे डिमांड ऑफ प्राइस है, डिमांड ऑफ प्राइस है, ठीक है। तो जैसे आप इधर जो है ग्राफ में बढ़ रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है? प्राइस घट रहा है, प्राइस घट रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे जैसे ही आ रहे हैं, ये प्राइस घट रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे जो है प्राइस कम हुआ, लेकिन क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो बढ़ गई। तो मतलब कम प्राइस पे हम क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। अगर हम इधर देखें तो इधर देखिए क्या हो रहा है कि जो डिमांड है, ठीक है ना, यहां पे हायर प्राइस, जैसे जो है कि प्राइस हाई हो रहा है, इधर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहां पे जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जा रहा है। भाई समटाइम्स लेट अस सपोज प्याज, अभी कुछ दिनों पहले आपको पता है कि प्याज का रेट कितना जो है कि वो, तो हमने क्या, ऐसा नहीं है कि हमने खाना बंद कर दिया था। हमने जहां हम 2 किलो परचेज करते थे, वहां हम 500 ग्राम पे आ गए, आधे केजी पे आ गए, तो उसकी क्वांटिटी क्या हो गई? घट गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जब जो है हमारे अकॉर्डिंग प्राइस नहीं होता है, ठीक है ना, प्राइस बढ़ जाता है किसी भी गुड्स का, तो हम जो है क्वांटिटी कम लेना बंद कर देते हैं। तो एट हायर प्राइस पे देखिए क्वांटिटी जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो कम कर देता है। तो इस तरफ जो ग्राफ है इट रिप्रेजेंट द हायर प्राइस। ये ऐसे हायर प्राइस आ रहा है, तो इसलिए जो है क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम कर रहा है वो कम कर रहा है। लेकिन जैसे इधर जब जा रहे हैं तो क्वांटिटी उसने बढ़ा दिया, क्योंकि जो है गुड्स की प्राइस जो है बहुत सस्ती हो गई या उसके रेंज में आ गई। तो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज अ लॉ ऑफ डिमांड ग्राफ, और बहुत इजी ग्राफ है। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एट इट्स ओन प्राइस। सिंपल, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देन इसके बाद से एक आते हैं कॉन्सेप्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है।
यूटिलिटी मतलब होता है किसी चीज से सेटिस्फैक्शन। जैसे लेट अस सपोज कि हम कोई भी चीज खा रहे हैं, लेट अस सपोज कोई प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, घर में खाना बना हुआ खा रहे हैं, ठीक है। लेट अस सपोज गाजर का हलवा खा रहे हैं, तो गाजर का हलवा खा रहे हैं, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून अपन ने खाया। देन उसके बाद से क्या हुआ कि जो लास्ट स्पून है उसमें कुछ कंकड़ आ गया, या फिर ये समझिए कि कुछ टेस्ट चेंज आ गया, या फिर कुछ ऐसी चीज आ गई जो हमें पसंद नहीं है, या फिर कुछ ऐसा हुआ। तो वो जो लास्ट स्पून हमारे टेस्ट को खराब की ना, उससे क्या हुआ कि जो पूरा हमारा जो सेटिस्फैक्शन है फॉर दैट पर्टिकुलर गुड्स वो बिगड़ गया। तो सिंपल देखा जाए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट्स को, किसी भी गुड्स को कीप ऑन इंक्रीजिंग यूज करते हैं तो हम उससे बोर भी आ जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है यार, दिस इज ह्यूमन नेचर। तो सिंपली कहता है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट्स को कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उससे बोर हो जाते हैं। या फिर सिंपली बोले कि एज वी गो ऑन टू यूज मोर एंड मोर प्रोडक्ट, इट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग द प्रोडक्ट जो है डिमिनिशिंग हो जाती है। डिमिनिशिंग मतलब उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घट जाती है, हम उसको कम पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन हम क्या है उसको डेली यूज कर रहे हैं ना। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मींस नियर अबाउट हम उसे पसंद करना, या उससे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हम उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो पाते। सो दैट इज व्हाट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मींस। कहने का मतलब हम जैसे जैसे कंटिन्यूअस किसी भी गुड्स को कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, लगातार यूज कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होना कम हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, आपको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा हो तो दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा। दूसरे को हो सकता है वो अच्छा लगे क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा है, आप कंटिन्यूअस उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तो आप उस प्रोडक्ट से बोर हो गए। दैट इज ओनली द कॉन्सेप्ट। सो एक्चुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, दैट इज अ सेटिस्फैक्शन रिलेटेड टू द लास्ट यूनिट ऑफ सम गुड्स, ठीक है ना। मींस आप यूज कर रहे हो, लास्ट टाइम आते आते मींस आप उससे बोर हो गए, या कुछ ऐसा हो गया जो लास्ट स्पून में आपको पसंद नहीं आया। सो दैट इज ओनली ओके। सो एज यू गो ऑन टू यूज मोर एंड मोर प्रोडक्ट, इट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग द प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है सिंपली। अब दूसरे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अदर कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को, अदर्स फैक्टर्स which affect the law of demand। भाई और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। एक तो भाई ये हुआ कि लाइक आपके अकॉर्डिंग जो है कि कंज्यूमर के अकॉर्डिंग उसके रेंज में उस क्वांटिटी की प्राइस कम हो गया, तो वो क्या किया, कंज्यूमर जो है उसका यूज़ थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, उसको परचेज ज़्यादा क्वांटिटी में कर लिया। एक तो ये हो गया, ये रिलेशनशिप हो गया। और कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो पहला है, फर्स्ट इज व्हाट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बट ऑब्वियस सी बात है भाई, ये वर्ल्ड है, डिफरेंट काइंड्स के पीपल है। यहाँ 20,000 भी अर्न करते हैं पर मंथ, एंड 20 lakhs भी करते हैं, 20 करोड़ भी करते हैं। सो डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट एबिलिटी टू परचेज द गुड, या राइट। सो अदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, हम और आपकी जो एक नॉर्मल लेवल पे आते हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है कि और कौन से अदर फैक्टर्स हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बट ऑब्वियस सी बात है, प्राइस तो अफेक्ट करता ही करता है।
अब जैसे कि प्याज की प्राइस बढ़ गई थी, तो हमने जो है क्या कर दिया था, उस प्रोडक्ट को, गुड्स को कंज्यूम करना थोड़ा कम कर दिया था। तो पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखिए, जब प्राइस घटता या बढ़ता है तो वो डिपेंड करता है कि गुड्स हम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो गुड्स में भी कैटेगरी है। जैसे गुड्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट गुड्स। अब भाई देखो, जैसे प्याज है, तो प्याज का सब्स्टिट्यूट तो कुछ नहीं है आप उसकी क्वांटिटी ही कम कर सकते हो, 1 केजी की जगह 250 ग्राम ले सकते हो, यही कर सकते हो। बट कुछ ऐसे गुड्स हैं जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। लेट अस सपोज कि हम कॉफी पीते हैं, कॉफी में बहुत वैरायटी आती है, मीन्स 2000 3000 रुपीज केजी पर केजी भी कॉफी मिलती है, 1000 भी मिलती है, एंड लाइक 700 भी मिलती है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज, कॉफी में बहुत वैरायटीज है। तो देखिए, गुड्स 2 टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं कि लेट अस सपोज कॉफी की प्राइस बढ़ गई या कुछ ऐसा हुआ, तो हम चाय भी पीते हैं, बट चाय कम पीते थे, बट अब जो है कि कॉफी का जो सब्स्टिट्यूट हमने टी में ढूंढ लिया, चाय पीना स्टार्ट कर दिया, तो वहां हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। मीन्स कॉफी के मुकाबले हम चाय ले रहे हैं। अगर हफ्ते में हम जो है कि लाइक 5 डेज कॉफी पीते थे एंड 2 डेज आपका चाय पीते थे, अब इसको उल्टा कर दिया, हमने 5 डेज जो है क्या कर दिया, चाय पीना स्टार्ट कर दिया एंड 2 डेज कॉफी। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है भाई, प्राइस बढ़ गया उस गुड्स का, तो हमने जो है गुड्स को ही सब्स्टिट्यूट कर लिया, ये भी करते हैं। देन दूसरा गुड्स आता है कॉम्प्लीमेंट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट गुड्स, तो भाई कॉम्प्लीमेंट गुड्स तो ऐसा है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब ऐसा नहीं है पेट्रोल और कार है तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, भाई पेट्रोल के बिना कार नहीं, कार के बिना पेट्रोल नहीं, तो रिफिल के बिना पेन नहीं, पेन के बिना रिफिल नहीं। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट गुड्स में आते हैं। दूसरा जो फैक्टर्स है जो आपके लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है, दैट इज द इनकम। बट ऑब्वियस ही बात है यार, अगर इनकम कम है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही गुड्स की परचेस करेंगे। इनकम ज़्यादा है तो हमें जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस में। तो जो सेकंड फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है कि इसको लॉ ऑफ डिमांड को, दैट इज द इनकम। अब इनकम क्या होता है, उसमें हम कुछ गुड्स की कैटेगरी के बारे में समझ लें, जैसे नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, जैसे इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स। देखिए, नॉर्मल गुड्स वह होता है कि विद द इंक्रीज ऑफ इनकम पर्सन यूज मोर नॉर्मल गुड्स एंड लेस इंफीरियर गुड्स। मतलब कि हाँ, इनकम बढ़ रही है तो इनकम बढ़ने के साथ साथ जो हमारे डेली यूज के गुड्स हैं जो हम यूज करते ही करते हैं, उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारा इनकम बढ़ गया तो हम अब चौड़े होके अरे कोई बात नहीं यूज करते हैं पैसा बहुत है हमारे पास तो यूज करते हैं। तो ये तो जनरल एक नेचर है। तो नेचर है कि नॉर्मल गुड्स को क्या करते हैं कि विद द इंक्रीज ऑफ इनकम पर्सन यूज मोर नॉर्मल गुड्स एंड लेस इंफीरियर गुड्स। भाई समटाइम्स क्या होता है, हमारी इनकम कम होती है तो कुछ हम इंफीरियर गुड्स का भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें पता है इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है यार, पेट का सवाल है, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इंफीरियर गुड्स क्या होता है, जैसे कि कोर्स ग्रेन, बार्ली, जवार, मिलेट्स, ये सारी जो है कोर्स ग्रेन होता है। बट आज के टाइम में कोर्स ग्रेन वैसे कोई भी नहीं यूज करता है। लोग अपनी जानवर मीन्स गांवों में लोग ज्यादा यूज करते हैं इसको, लेकिन ये है कि वैसे शहरों में तो कोई नहीं करता है, बट इसको इंफीरियर गुड्स में आता। बट मैं फैक्ट बोलूं, ये गुड्स बहुत ही अच्छे हैं। इवन आज के टाइम में डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करता है कि भाई आप बार्ली की रोटी खाओ, ठीक है, जवार का रोटी खाओ, ये क्योंकि उसमें ज्यादा हाईली जो है प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट विटामिन होती हैं, वो ज्यादा फायदेमंद। बट
अच्छी चीज़ हमें कहाँ अच्छा लगता है, ये तो पर्सन का नेचर है, हम हमेशा नेगेटिव चीज़ की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। राइट, सो इंफीरियर गुड्स आर व्हाट, कोर्स ग्रेन, बार्ली एंड जवार। गिफेन गुड्स क्या होता है भाई, गिफेन ने कुछ गुड्स के नेचर को एग्जामिन किया, इसलिए उस गुड्स का नाम दे दिया गिफेन गुड्स। अ लार्ज वैरायटी ऑफ कोर्स ग्रेन, जैसे आपका बार्ली हो गया, जवार हो गया और मिलेट्स हो गया, ये सारे गिफेन गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। एक बात आपको यहां पे ध्यान करने की जरूरत है कि गिफेन गुड्स के साथ लॉ ऑफ डिमांड वायलेट होता है। क्यों वायलेट होता है भाई? इसलिए होता है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा इनकम बढ़ेगा तो हम गुड्स की परचेजिंग ज्यादा कर देंगे, ठीक है। बट यहां पे उल्टा होता है, हमारी इनकम बढ़ेगा तो हम गिफेन गुड्स जो पहले यूज कर रहे थे उसको छोड़ देंगे, उसका डिमांड हम कम कर देंगे, ठीक है, हम नॉर्मल गुड्स पे आ जाएंगे, ठीक है। सो गिफेन गुड्स के लिए जो है हमारा जो है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वायलेट करता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड ऑल। सो वी हैव डिस्कस एंड ऑल। देन इन नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि लाइक जैसे डिमांड की कैटेगरी देख ली, देन हम जो है कि सप्लाई की कैटेगरी देखेंगे कि भाई सप्लाई क्या होती है। सप्लाई इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट अ डिफरेंट प्राइसेस। देन हम देखेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई कौन करता है भाई? कौन करता है? सप्लाई मैन्युफैक्चरर करता है, प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। तो उसके पर्सपेक्टिव में हम जो है क्या यहां डिस्कस करेंगे, आपका जो है कि लॉ ऑफ सप्लाई डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फिर इसके बाद से यहां भी हम जो है कि ये ग्राफ बनाएंगे किसका, लॉ ऑफ सप्लाई का, ठीक है। तो ये सारा जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको जो है एक नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए कि आज नया लेक्चर आया है। तो कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर्स माय लेक्चर एज वेल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।